ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣਾਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੈ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਵਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੋਹਿਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਜੁਗ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਜਨਮ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿਰਤੀ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ 50% ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਫੇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਰਧਾਰੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਉ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਉ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਉ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਉ। ਭਉ ਮੀਨਿੰਗ ਡਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਉ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਉ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਪ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਖੋਟ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ 50, 60, 70 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਉ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਦੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਲਬ ਉੱਤੇ ਭਵੱਖੜ ਕੋਲ ਪਤੰਗੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੰਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਮਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੀਪਕ ਪੈ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਲੱਗ, ਦੀਪਕ ਮਹਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮਿਲੇ ਜਹਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਅਲ ਚਲ ਆਵਤ ਕਵਲ ਪੈ ਸਨੇ ਕਰ, ਕਮਲ ਸੰਪਟ ਬਾਂਧ ਪ੍ਰਾਨ ਪਰ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੌਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਜਲ ਨੀਨ ਲਿਵ ਲੀਨ, ਗਤ ਵਿਸ਼ਰਤ ਰਾਖ ਨਾ ਸਖਤ ਗਹਿ ਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੱਛੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਝਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ, ਉਦਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਮਨ ਜਪ ਮਨ ਬਚ ਕਰੀਮ ਜਲ ਮੀਨ ਲਵ ਲਿਵ ਲੀਨ ਗਤ ਬਿਸ਼ਰਤ ਰਾਖ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ ਢਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਪਾਸਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਵਿਤ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਨਮੋ 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 ਨੇਤ 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 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਕੱਲਾ ਭਾਉ ਭਾਉ ਮਿਨੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ, ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਥਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਪੜੋ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰ ਮੋਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਧਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ? ਕੀ ਕੋਈ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਕੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰੋਜ਼, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰ ਮੋਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2-2.5 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਵਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਸੌਂ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ 7 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ, LKG ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤਹਾਂ ਨੇਮ ਕੈਸੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੇਮ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਾਈ ਸਨੈਪ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ, ਬੀ ਫਾਰ ਬੈਟ, ਸੀ ਫਾਰ ਕੈਟ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਖਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ ਲਿਖੋ, ਸੀ ਫਾਰ ਕੈਟ ਵਾਲੀ, ਨੋ, ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ। ਬੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ 10 ਵਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀਪੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਪੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਰੀਰ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰਾ ਫਸਟ ਵਰਕ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ। ਭਲ ਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਬਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਫਸਟ ਵਰਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਤਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਚਲਾਵੇ। ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਵਸੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਆਈਏ ਜੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਸਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ। ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬਿਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। मस्जिद को बना दी शब्बर में, इमां की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, वर्षों में नवाजी बन ना सका। सालों दे साल गुजर गए, मन नवाजी नहीं होया, सिर झुकदा रहा। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ी बड़ी बख्शिश कृपा की। इस धरती के लोगों को बड़ी सरल भाषा विच अकाल पुरख रब नाल जोड़िया। पहला वो कठिन भाषा सी जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी अंदर भगत कबीर साहब ने कहा, कबीर कागद की ओबरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी भाट। कहते दुनिया के लोगों पंडित ने वेखो की कीता है। कबीर कागद की ओबरी, ओबरी का अर्थ होंदा कैद। कहते धर्म नूं कागजां दी कैद विच इकट्ठा कर लिया, वेदां ग्रंथां नूं औखी भाषा विच लिया के मोहरे रख दिता, तुहानूं नहीं पढ़ना आउणा, असीं दस्सांगे किवें पूजा पाठ करनी, जग पुन्न कराने पंडित दसेगा, किसी नूं नहीं। साध संगत, अज भी बहुत लोग ने किसी दे धर्म की कोई निंदिया नहीं, वो हर कर्म पंडित तो पुछ के करनगे। करना किवें? इवन इत्थों तक कोई किसी ने घर विच बच्चा जन्म ले तो हुण तो डराउण लग पे लोकां नूं, इन्ने समय उत्ते इन्ने टाइम विच जन्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिहा लेट करा लिओ। वो डॉक्टरां नूं कहण लग पैंदे ने ऑपरेशन इन्ने वजे करिओ, पंडित ने दस्सिआ। हद हो गई गल वाली। बच्चे दे जन्म नूं भी कहण लग पे, डॉक्टर साहब इन्ने बज के इन्ने मिनट दे ऑपरेशन करिओ, उदों बच्चे दा बर्थ चाहिए, ये बच्चा शुभ होएगा। साध संगत, कितना बड़ा भुलेखा है। वो जिस अकाल पुरख ने उस बच्चे नूं सिरजिआ, उन्हें सब कुछ पहलां लिखिआ। मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म तो मरण तक दी कहानी रब ने लिख दी है। तुसीं समा अगे पिछे करा के की कर लोगे? वो पुछ के चलदे हुण कोई काम शुरू करना, इन्ने वज के इन्ने मिनट तक करिओ, वो पहला मंत्र पढ़नगे। तुसीं टेलीविजन ते वेखिआ होना है, हालांकि खेड है, दो देशों का मैच चल रहा है, दो टीमां स्क्रीन उत्ते सैटेलाइट चैनलों ते वो लाइव हो रहा सी, दो टीमां मैच खेड रही ने। एक टीम की मालक जिहड़ी बैठी है वो बड़ी अमीर है, उन्हें टीम खरीदी हुई सी, इंडिया की औरत है। साध संगत, उन्होंने बार बार चैनल वाले विखा रहे सी, वो अपनी टीम वास्ते मंत्र पढ़ते सी जदों दी टीम खेडदी सी, पर वो मंत्र पढ़ने के बावजूद भी वो टीम हार गई। ये भुलेखा दिता जाता है कि आह जितण वास्ते आ मंत्र पढ़ो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने तुहाडे भरम दूर कीते ने। ऐसी कोई बाणी नहीं जिहड़ी उचारण कीती होवे गुरु ने जी आह काम वास्ते आ बाणी पढ़ो, वो वखरी गल है। सानू भुलेखा पै गया, मैनू माफ करिओ। विचों विचों शब्द कढ के असीं एक बाणी बना लई है, उहदा नाम रख लिया दुख भंजनी। सुखमनी साहब दा पाठ नहीं, हुण दुख भंजनी दा करन लग पे। वो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, गुरु ने इस तरह की कोई बाणी नहीं उचारण की। सतगुरु एक सरल शब्द उचारण किए ने, भाई इस तरह की कोई बाणी नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी तो तुहाडा भरम दूर करेगी। इत्थों तक पढ़न वाले नूं साध संगत, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी जिहड़ी है मैंटली प्रिपेयर करेगी, मानसिक तौर पर तैयार करेगी। अज सुख ने दुख भी होणगे, तू तैयार नहीं उहदे वास्ते। अज खुशी है, गम भी हो सकता है, अज जन्म है, मौत भी हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने किसी नूं भुलेखे च नहीं पाया, मानसिक तौर पर तुहानूं पहले तैयार किया, मैंटली प्रिपेयर रखिया सिख नूं।
ये गल कह के सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। भाई रब ने लिखे ने आउणगे तेरे जीवन ये तैयार किया मैंटली तो कि हरखन ता सोगन भोगन ता रोगन। भाई खुशी है ते गम भी होने, उदास ना होना। भोग रहे ते रोग भी आ सकते, इसलिए उदास होने की लोड़ नहीं, डरन की लोड़ नहीं। हाँ इन्ना हौसला नाल जरूर दिता है, सिखा दुख आवे ये तू पहला तैयार रहना है। तेरे जीवन अंदर सुख है तो दुख भी होणगे, खुशी है तो गम भी होएगी, तंदुरुस्ती है तो रोग भी आउणगे। पर जदों तैनू महसूस होवे कि तेरी जिंदगी दा रोग वड्डा हो रहा है, उदों अपने गुरु अगे अरदास करी प्रेम विच आके। हाँ तेरे गुरु विच इन्नी समर्था जरूर है, जे तू चित जोड़ के अरदास करें, जदों लगे दुख वड्डा हो रहा है उदों गुरु अगे अरदास करी, तैनू गुरु तत्ती हवा भी नहीं लगन देगा। यह विश्वास जरूर दिता है। पर ऐदा कुछ नहीं कहा वे आ बाणी पढ़ो दुख नहीं आउणगे, दुख तो आउणगे भाई। जिस गुरु ने सुखमनी साहब उच्चारण किया है, उस गुरु ने तत्ती तवी ते बैठ के वो कष्ट झल्ले है। साध संगत सानू समझाया जिंदगी च दुख आउणगे भाई, पर जदों लगे दुख वड्डा हो रहा है उदों अरदास करी। मुश्किलां आउणगियां, मुश्किलां तैनू मजबूत करनगियां, दुख तैनू रब नाल जोड़नगे। तुसीं रोज ही पढ़दे हो, देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा प्रकाश पर्व मना रहे हो, आपां विचों प्रकाश सिख सकीए। गुरु ने की समझाया है कि दुख दारू सुख रोग पया। पढ़ो दुख दारू रोग पया जा सुख ताम ना होई। भाई गुरु दे सिखा दुख तेरे वास्ते दवाई है, दारू है। क्यों? दुख होने तेनू वाहिगुरु चित्ते होना, दुख होने तेरी सुरत चों विकार मिटने, दुख होने तू रब वल दे पासे तुरना है। उस तो बाद सुख आउण फिर छड्ड के ना जाई। ये प्रीत पक्की हो जाए तो यह प्रेम तेनू परमात्मा तक ले जाएगा। साध संगत दुखा तो ये नहीं गुरु ने कहा भी आने ही नहीं भाई मेरे धर्म च आ जाओ। इदां दे धर्म होण प्रसिद्ध होण लग पे ने, लोकां नू भरम विच पा रहे ने। साडे कोल आओ सारे दुख हट जाणगे, साडे कोल आओ असीं दुख मिटा दिंदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी तुहानू बिल्कुल भुलेखे च नहीं रखेगी। इस तरह कदे भी नहीं कहा कि मेरे कोल आओ तुहानू दुख नहीं आउणगे, नहीं। इन्ना साहब ने कहा दुख आउणगे पर दुखों का हल हो जाएगा जे तू नाम जपेगा। दुख दारू सुख रोग पिया। जां फिर साहब ने कहा सिमरो सिमर सिमर सुख कल कलेश तन माए मिटाओ। भाई तू सिमरी तेरे दुख मिट जाएंगे। मुश्किल आनी चाहिए, मुश्किल तुहानू मजबूत करती है। ये मैं दरबार साहब तो भी एक दिन कथा कही, जिन्हां कौमां नू मुश्किलां आउंदियां ने वो कौमां मोस्टली मजबूत हुंदियां ने। मजबूत कौमां दुनिया विच राज करदियां ने। तुहाडी अजे सिर्फ 550 साल उम्र है ते साध संगत सिख कौम ने 550 साल विच पूरे वर्ल्ड विच केसरी निशान चला दित्ते। जिन्हां कौमां दी उम्र 5-5 हज़ार साल हो गई है, किथे 500 साल ते किथे 5000 साल। जिन्हां कौमां दी उम्र 5000 साल हो गई है वो पूरे वर्ल्ड विच फैल नहीं सकियां। तुसी पूरे वर्ल्ड विच फैल गए हो। किसी देश दे अंदर किरपान दा केस है, किते दस्तार दा केस है। क्यों साध संगत? पूरे वर्ल्ड दे अंदर केसरी निशान। ओदा कोई रीजन है, तुसी मुश्किलां भी दूजियां कौमां नालों 1000 गुणा वध सकियां। जेड़ी कौम मुश्किलों चो गुजरती है वो मोस्टली मजबूत होती है। मजबूत लोग दुनिया में राज करते हैं। सिख किते भी जाके वसते वो वड्डी तो वड्डी मुश्किल विच जिंदगी नूं स्वर्ग बना लैंदा है। मैं ऐसे गुरसिख वेखे ने जिन्हां कंट्रियां शहरां विच 2-2 घर ने, उन्हीं अपना घर अजे भी साध संगत लोन उत्ते मॉर्गेज चलदा है। सब तो पहला गुरु दा घर बनाया, भावें छोटा ही बनाया। पहला गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश किया जिथे गया। इत्थे तुसीं जॉबां ही करन आए सी ना। गुरु ने कैसी लाग लाई होगी आरंभक सिखां दे अंदर, जिथे जॉब करनी घर बनाउणा पहला गुरु दा घर उत्थे होना चाहिए। अज किस तरह ये सब कुछ महल बनारे बन गए।
सिख अपने तो पहला गुरु नूं अगे रखता है, और जिदन सिख जीवन विच अपने हर कारज विच गुरु नूं अगे रखण लग जाए, याद रखियो गुरु तुहानूं अपने तो भी अगे कर दिंदा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दी वडियाई है। सिखा तो गुरु नूं हर कारज विच मोहरे रख, गुरु तैनूं अपने तो भी मोहरे कर देगा। ये गुरु ने वडियाई दिती है। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने 4 साहिबजादियां बारे सिखां नूं कहा, सिखो मेरे पुत्रां दा नाम पहला ना लियो, पहला मेरे गुरसिखां दा नाम लियो। गुरु ने सिखां नूं मोहरे कीता है। तुसीं जदों अरदास करोगे उहदा दूजा पैरा पढ़दे हो, उहदे विच साहिब दा हुक्म है, पहला अरदासियां कहेगा पंजां प्यारिया, फिर कहेगा 4 साहिबजादे। ये गुरु दा हुक्म है। पहला 5 प्यारे, फिर गुरु दे अपने पुत्र 4 साहिबजादे। हर दीवान विच एक कला वरतदी है। जदों समाप्ति होनी कड़ा प्रशादी देग वरताई जानी है, वरतावे ने की करना है, किरपान भेंट करन तो बाद, अरदास तो बाद एक थाल विच 5 गफ्फे प्रशाद दे कढ़ने ने। कदे पुछियो किहदे वास्ते कढ़े ने? वो कढ़न लग्या पहला कहंदा 5 प्यारियां लई भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई साहब भाई धर्म सिंह जी, भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब भाई साहिब सिंह जी। कोई पुछो ये किहदा हुक्म है? ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हुक्म है। संगत विच प्रशाद वरताउण तो पहला मेरे 5 सिखां नूं याद जरूर करियो। ये नहीं कहा मेरे पुत्रां नूं याद कर लियो, उन्हें शहादत दी मेरे साहिबजादियां नूं याद करियो, नहीं। मेरी मां गुजरी दे नाम ते प्रशाद कढ़ लियो, ऐदां नहीं कहा। प्रशाद कढ़न लई कहा पहला गुरसिखां लई। गुरु सिख नूं अपने तो मोहरे रखदा। नगर कीर्तन दे दर्शन करदे हो ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप पिछे हुंदे ने। पहला संगत किहदे उत्ते फुल्लां दी बरखा करदी, किहनूं सरोपे पाउंदे ने? 5 प्यारियां सिखां नूं मोहरे। पर शर्त है सिखा तू जीवन में पहला गुरु नूं मोहरे रखे। जदों तू गुरु नूं मोहरे रखन लग जाएगा, ये याद रखी गुरु तेरे नाल रहन लग जाएगा, फिर तेरा नाम गुरसिख पै जाना है। सिख तो पहला गुरु पहुंच जाता है, हर कारज फिर गुरु करन लग पैंदा है। इत्थों तक साहब ने लिख के दिता है, जिदन तेरे जीवन अंदर गुरु पहल के आधार पर आ गया, उदन याद रखी तेरा हर काम तेरे पहुंचण तो पहला गुरु कर देगा। किते लिखिया होया, आ पंक्ति पढ़ो। जिथे हजूर कहंदे सेवक को निकटी होए दिखावे, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उठ। पढ़िया करो गज के, जै जै काज किरत सेवक की तहां तहां उठ। अगली गल, सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। तत्काल इमीडिएटली, उसे वक्त। आ तत्काल हुण सेवा शुरू हुई ना, रेलवे वाले शुरू की तत्काल टिकट मिलती है, जहाजा वाले कहते हैं महंगी मिलती है, तत्काल मिल सकती है। मेरे गुरु ने 5 सदियां पहला कहा, सिखा तू प्रेम करके वेख तेरा काम तत्काल होगा, उसे वक्त। तेरी फाइल पिंड में नहीं रखी जाएगी, उसे वक्त कम होएगा, उसे वक्त तत्काल इमीडिएटली। कदों? जदों तू गुरु नूं अगे रखण लग पिया, जदों तू भाओ और भय वाले मार्ग ते तुर के गुरु नाल एकमिक होण लग पिया, फिर गुरु तेरे कार्य तो अगे चल पाएगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी, मैं कल वाले विषय ते फिर आऊंगा। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे रम तो दर्शन करोगे, पहला लिखिया आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। थले पंक्ति लिखी, ए बीड़ दमदमी बीड़ नाल मिला के लिखी गई है। उस तो अगले पेज ते आयो, तत्करा आउंदा है। तत्त के विच अंक लिखे हुए ने, जप सोदर सोहला राग श्री राग 14 अंग पे। जिथे जप लिखे पुरातन बीड़ा में, उत्थे विद्वाना पढ़े है, मैं भी दर्शन किए ने। जप निशान ओदा अर्थ है वो डॉक्यूमेंट, वो कागज, वो राहदारी, वो पासपोर्ट जिहदे नाल तुसीं एक देश तो दूजे देश ट्रैवल करना है। सिखा रोज जप दा पाठ करी, हर रोज जपजी साहिब दा जप करी। जिदन तेरी सुरत जुड़न लग पई, ये जपजी साहिब दी बाणी वो पासपोर्ट है जिहड़ी तैनूं गुरु नानक दे देश विच ले जाएगी।
ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਬੀਜੈ, ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2008 ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਤੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ साध संगत, उन्हें एक गल कही, वो कहता दुनिया के लोगों, हिंदी में बोल, ऐ संसार के लोगों, मैंने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है। उन्हें साध संगत 27 सिमरतियां, 18 प्राण, वेद 4 सब पढ़े हुए से। जदों वक्त मिलिया वो बोलिया, वो कहना गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का भी मैंने अध्ययन किया है। ते नाल वो बोल रहा सी, कहना गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दे अंदर जो अखर, जो भाषा वरती गई है, वो संसार दी है। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा ऊड़े, ये 35 अखर, ये 41 अखर, ये 52 अखर, ये 52 अखरी, ये संसार दे अखर ने। ये भाषा संसार दी है। ये कलम, दवात, स्याही, कागज सब कुछ संसार तो लिया, पर इस गुरु ग्रंथ साहिब विच समाया होया शब्द इस संसार दा नहीं। जिद्दन कोई पढ़दे सुरत शब्द नाल जोड़ ले, ओदे भाग जागण, ओदी सुरत बाणी नाल जुड़न लग जाए। कागज, ग्रंथ, स्याही, अखर इत्थों दे ने, सुरत रब दे देश विच चली जाएगी। जिथों बाणी आई है, तुहानू बाणी उत्थे ले जाएगी। किथों आई है? तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत। भाई ये तुहाडी सुरत नूं उत्थे ले जाएगी जिथों बाणी आई है। तुहाडी सुरत नूं उस नाल जोड़ दे। और संसारी तौर पर फिर साहब ने कृपा की है, कह लगे तेनू भरम भुलेखे चों भी बाणी कढेगी। तू गुरु दे सिखा, गुरु ते विश्वास रख के तुनी। तेरे जीवन में मुश्किल होवे तां डरी ना, दुख होवे तां दुख दारू है। पर जिदन तेनू महसूस होने लग जाए कि दुख थोड़ा वड्डा हो रहा है, जिदन महसूस होवे मुश्किल अत मुश्किल बन रही है, जिदन तेनू लगे तेरे साथ संबंधी तेरे साथ नहीं दे सकते, जिदन महसूस होवे पैसा कम नहीं आ रहा, जिदन महसूस होने लग जाए कि तेरी समझ अकल पहुंच अधूरी रह रही है, उदन एक कम करी, गुरु नूं समर्पण होके कह दें, दाता हुण मेरे वस दी गल नहीं, हुण कारज तुसीं करना है। जे गुरु नूं अरदास करें, जा तैनूं तत्ती हवा भी नहीं लगण देगा। ये भी समर्थ है। मैं नाल नाल शरदा दी गल इसलिए कह रहे हैं, दो चीज़ां गुरमत विच ने, आपो अपना कथा करन दा तरीका है, जिते गुरु दी जो बख्शिश है। मैं बहुत अपने आप नूं अधूरा ते छोटा मनना है। साध संगत दो चीज़ां ने, ज्ञान ते शरदा अत्यंत सिख अंदर होनी चाहिए। कल्ला ज्ञान तुहानूं किते भी नहीं पहुंचा सकेगा। जे शरदा नहीं, ज्ञान खतरनाक हो सकता है। जे शरदा नहीं तां ज्ञान दे अखर तुहाडे लई खतरनाक हो सकते ने। दो चीज़ां विच सियाणे सज्जण बैठे ने। कल्ला घिओ खाओगे तां ब्लड प्रैशर की बीमारी ला सकदा है, कल्ली शक्कर खाओगे शुगर कर सकती है। जे शक्कर ते घिओ मिला के खा लो तो बजुर्ग कहते ने वो शरीर नूं रोग नहीं पैदा करती, शरीर नूं बल पैदा करती है। साध संगत कल्ला ज्ञान किसे बंदे नूं रोगी कर सकता है, कल्ली शरदा किसे बंदे नूं दूर ले जा सकती है। दोवें चीज़ां इकट्ठियां चाहिदियां, ज्ञान भी होवे ते शरदा भी होवे। सिख नूं ज्ञान भी होवे, उन्हें सिर कित्थे झुकाउणा है, और सिख नूं शरदा भी होवे, उन्हें सिर झुकाउण लग्गियां अकल नहीं वरतनी। उत्थे फिर जो गुर कहे सोई भल मन है, जो गुरु कवे वो मन के तुरना है। तां साहब ने कहा, जिस दिन लगे तेरा पैसा, मित्र, सज्जन, मां प्यो, भैन, भाई, तेरी पहुंच कम नहीं आ रही, हुण तेरे हाथ खड़े हो रहे ने, अत मुश्किल विच कह दी गुरु नूं, दाता हुण मेरे वस दी गल नहीं, तैनूं गुरु ने तत्ती हवा भी नहीं लगन देनी। दो थावां ते शब्द वरते है, होर थावां ते भी होएगा। मैं पढ़िया सुखमनी साहब अंदर, तुसीं भी पढ़ दो। जय मुश्किल होवे अत भारी, पढ़ो जय मुश्किल होवे। ये शब्द शुरू होने, जय मात पिता सुत मीत न भाई मानूहा नाम तेरे। जय महाप्यान दूत जम दलै तै केवल नाम।
अगे आउंदा जह मुश्किल होवे अत भारी मुश्किल हर को नाम खिन माहे। एक शब्द होर मैं तुहानू पढ़ावां। उत्थे साहब ने कहा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। आ हुण कोरोना दी बीमारी आई सी ना, सके भी भज गए ना। जिन्हां नूं होया उन्हां नूं पुछ के वेखो, घर दे भी पुत्तर धीआं नेड़े नहीं आए। जिउंदियां छड्डो, मरन तो बाद लाश लैण भी नहीं गए, नेड़े भी नहीं होए। साहब ने कहा जिथे अत मुश्किल हो तेरे नेड़े भी कोई आन तो डरन लग जाए। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना सा कभी भज सबो भजे आसरा पड़ो चुके सब सराओ चितावे उस पार ब्रह्मता लगे ना तत्ती वाओ। तेनू तत्ती हवा भी नहीं लगन देनी गुरु ने। तू उन्होंने चित कर, चित करके अंदरों जुड़, उन्होंने मनो कह दाता हुण मेरे वस दी गल नहीं। अरदास करी मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लग गए मेरा। जिदन सिख सरेंडर करदा है, गुरु नूं समर्पण हो जाए, उदन गुरु फिर आप काम करदा है। उदन फिर सेवक को निकटी होए दिखाता है। जप निशान का अर्थ है तू सिखा रोज जप जी पढ़। ये बाणी तेनू उस देश विच लै जाएगी जिस देश तो बाणी आई है। निरंकार के देश जाहे तां सुख लहे महल। कल एक नुकता रह गया सी, जिथे जपजी साहब आरंभ हुंदा है पहले अंग उत्ते कॉलम खाली छड्डिया गुरु ग्रंथ साहब दा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਅੰਗ ਤੋਂ 2 ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की आरंभता में कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई राग ना कोई महला, ना किस गुरु की बाणी है, ना महला ना राग ना अंग। जदों सीधे ही दर्शन करोगे शुरुआत कित्थों होएगी? एक ओंकार सतनाम। क्योंकि जे कॉलम में एका लिख देंदे ओनू भी शायद कोई पढ़न लग जांदा, ओदी भी शुरुआत कोई अखर अर्थ होर हो जांदे। एक इदां दा मत चलिया बहुत, वो बाबे ने एका बना बना लोगों के गलों च पाते तवीत। एका लिख के ना अपने तवीत बना के लोगों के गलों च पाते। हुण वो बाबा वैसे जेल में PR हो गया है, उन्होंने उम्र कैद हो गई है, लोगों के गलों में एका पाउंदा रहा। एक च पाया नहीं, एक दा उपदेश दिता नहीं। इत्थे एक ओंकार तो गल शुरू नहीं हुई गली। इत्थे क्या एक दे अगे अरदास भी करी गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं। इत्थे भी उपदेश दिता कि साहिब मेरा एको है भाई एको है। ओदे अगे अरदास कर अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों बाणी की संपादना शुरू की, इतिहास कहता है लाहौर तो 4 कवि आए, वो कहते साडी भी बाणी लिखो जी, तुसीं भगतां दी बाणी लिख रहे हो। महाराज ने कहा बिल्कुल लिखाओ भाई। रामसर सरोवर के कंढे बैठे हो 4 कवि लाहौर तो आए ने, कन्ना, छज्जू, पीलू, शाह हुसैन। सब तो पहला हंकार विच कान्हा बोलिया क्योंकि इहदा दिल्ली दरबार तक पहुंच सी। सुली खान इहदा चचेरा भरा सी। इन्हें गुरु गोबिंद धन गुरु अर्जन देव महाराज के दरबार च रामसर सरोवर के कंढे कहंदा जी पहला मेरी लिखो। पातशाह ने कहा लिखाओ जी। ये बोलिया कहना जी लिखो मैं ओही रे जाको वेद पुराण जस गावे खोज देखो सब कोई रे। सतगुरु रोक के कहा नहीं करना, ये बाणी नहीं लिखी जा सकती। महाराज क्यों?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ उन्हीं ऐनी गल कही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इसलिए उन्हां दी बाणी दर्ज है, तू ते हंकार विच कहना मैं ओही रे मैं ओही। ये ते गल्लां ब्रह्म वेदां शास्त्रां विच आई कि हम ब्रह्म तमसी, मैं ही रब हाँ। ये ते सूफी फकीर कई कहंदे रहे अनल हक, मैं ही खुदा हाँ। पर गुरु नानक दे घर विच उन्हां नूं प्रवानता जिहड़े इन्ने नीवे होके रहे, जिन्हां ने कहा कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब अपा परका मिट गया जत देखूं तत तू। काना चुप कर गया। पीलू बोलिया, महाराज कहने भाई तुसी दसो तुसी की लिख के लिआए हो? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇ ਆਲੂਦ ਭਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੁਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। सतगुरां कहा बहुत गलत है ये उपदेश, साडी बाणी नाल तुरकी बाणी नाल मिलदा नहीं। इत्थे तां समझाया जाना कि दुलभ दे पाई वड भागी, तू कहना जमदियां मर जाना चाहिए। नाम ना जपै दे आत्म घाती, इत्थे तां रोज पढ़ाया जाना भई बराबत मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की। इते समझाया जाने कि चिरंकाल ए दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की वरी। इत्थे ते रोज पढ़ाया जाना जेड़े रब नाल मिले। उन्हें क्या कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना मारे बार। पिल्लू चुप कर गया। साहब ने क्या होर दसो गई? कहते ने फिर छज्जू बोले, महाराज मेरी लिखत लिखो। कागद संधि पुत्री तो न त्रिया निहार। महाराज इस्त्री कागज की भी बनी होवे, उहदे वल वेखना नहीं चाहिए। इस्त्री नरक घोर का दुहार। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले नहीं बई तू भी किसी इस्त्री की कुख तो पैदा हो, तेनों भी जन्म किसी इस्त्री ने दिता है, और तू नरक घोर का दुहार नहीं। तू कहने कागज की भी मूर्त तकनी नहीं चाहिए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले इत्थे तां आ उपदेश पढ़ाया जाना कि भंड जम्मी है, भंड निम्मी है, भंड मंगण व्याहो, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखी है, जित जम्मे राजा। इस गुरु नानक साहब के घर में सब तो पहला महान इस्त्री नूं मिले है, औरत नूं मिले है। तुसीं इतिहास पढ़ के वेखियो, जे गुरु नानक दा कोई पहला सिख होया ते साध संगत बेबे नानकी इस्त्री है। जन्म देण वाली मां ने भी दर्शन बाद विच कीते ने, बाकियां ने गुरु नानक दे दर्शन बाद विच कीते। सब तो पहला जे किसी ने गुरु नानक दे दर्शन कीते वो एक औरत दौलतां दा ही नहीं। जे गुरु नानक रब है तो उहदे दर्शन तो पहला औरत नूं होए ना। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने क्या गलत है। चौथा रह गया कवि शाह हुसैन, कह लगे तुसीं दसो जी। उन्हें क्या हुण की बोलना चाहिए? जिन्हें क्या दुनिया तो प्रधान रहना है उन्होंने भी पातशाह ने नहीं लिखिया। जिन्हें क्या मैं उही रे मैं उही, वो भी नहीं लिखिया। जिन्हें क्या संसार नूं नहीं तकना चाहिए उन्होंने भी गुरु अर्जन देव महाराज ने रद्द कर दिता। उन्हें वो कविता सोची जिहड़ी तिन्ना विषयों तो हट के होवे। वो कहंदा चुप वे अड़िया बोलण दी नहीं जावे अड़िया। चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले, कहंदे शाह हुसैन ये तां बिल्कुल मेल नहीं खांदा। उन्हें कहा महाराज क्यों? कहणगे पहले अंग ते आ जाने, चुपै चुप ना होवई जे लाए राह। पढ़ो चुपै चुप ना होवई जे लाए। भाई चुप करके नहीं, हाँ चुप करना है एक जगह ते करना। वो किथे?
उंज बोलने संत मिले किश सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। साकत मिल जाए ते चुप, उंज भाई चुप कीतियां रब नहीं मिलता। इत्थे बोलना, रब ने बोलण वास्ते जुबान दिती है। बाबा बोले पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरो। भाई बोलना। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने चौं नूं जवाब दिता। इतिहास कहंदा जान लग्या करना कहंदा वेख लांगा तुहानूं। मेरी दिल्ली तक पहुंच है, वो लाहौर नहीं पहुंच सकिया। राह जांदियां गड्ढा पलट गया, एक पहिया टुट करके वो गड्ढे थल्ले आके रस्ते विच ही मर गया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता की। 30 रागां विच 974 अंग जिल्दबंदी हुई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप तैयार हो गए। उस तो बाद पातशाह ने 2 दिन का वक्त लिया। भाई गुरदास जी इहदा प्रकाश ग्रंथ का श्री हरमंदर साहिब विच करदा। उस दिन तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने 4 भाई मंजे उत्ते नहीं सुते, एक रात 2 दिन विचाले सन। श्री गुरु अर्जन देव महाराज भाल कर रहे सन किहड़े सिख नूं सेवा संभालनी चाहिए है। कह लगे अद्धी रात है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज अमृत सरोवर के कंढे आ गए। जदों अमृत सरोवर के कंढे परिक्रमा कर रहे ने, पहला पहर है, रात टिकी हुई है, तारे चमक रहे सन, मिठी मिठी ठंडी हवा चल रही है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज टहलदियां बेर दे कोल आए ते उत्थे एक शरीर चिट्टी चादर लेके चौंकड़ा मार के बैठा है। आवाज आ रही है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वो वेर दे कंढे कौन बैठा है? ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब। पातशाह ने प्यार नाल बुलाया। बाबा बुढ़ा साहब एकदम रुक गए। गुरु की आवाज है, उठ के खलो गए। सतगुरु बचन कहा, बाबा जी तुहानू एक सेवा लौनी है, महाराज हुक्म करो। गुरु अर्जन देव महाराज बोले कि जो आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब की धुर की बाणी का ग्रंथ तैयार किया है, कल आपां हरमंदर साहिब प्रकाश करना है। बाबा बुढ़ा साहब वो सेवा असीं तुहानू देनी है। इतिहास पढ़ियो, 98 ईयर ओल्ड, 98 साल की उम्र है बाबा बुढ़ा साहब। मैं कई बार एक कथा विच कहा है, इत्थे कोई सनियोरिटी कोई रिजर्वेशन गुरु नानक साहब के घर विच नहीं। जिहड़ी उम्र विच दुनिया कहती है ना 60 के बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन, 17 सालों का हो जाए, घर वाले कहते तैनू की पता है। 70 साल का बंदा बोले ना जिन्हें घर कोठियां बनाईयां, नौकरी की, बच्चे पाले, तो उन्होंने बच्चे कहन लग पैंदे आ, बापू जी तुसीं ना बोलो, तुहानू नहीं पता, माता तैनू नहीं पता की गल है। उन्होंने चुप। ते जे 80 का हो जाए फिर भावें उहदे दोते दोतियां दा विआह क्यों ना होवे, उहनूं घरे ही बिठा दिंदे ने। तूं उत्थे की करना बीबी जाके, मम्मी तुसीं की करना उत्थे, रहो घरे ही। 80 का व्यवहार ना पावे, 90 का से जासनी मूल ना जाने अपवल। ये दुनिया की कहानी है, पर मेरे गुरु दे घर की कहानी दुनिया नालों वखरी है। इत्थे व्याख्या कोई एकेडमिक एजुकेशन नाल नहीं हो सकती। गुरु की व्याख्या कदे ज्ञान नाल करन दी कोशिश ना कोई करे। भाई इत्थे 98 साल की उम्र विच भी गुरु अर्जन देव महाराज सेवा दे रहे हैं। बाबा बुढ़ा साहब तो सेवा लेनी है। हाथ जोड़ के, महाराज मैं तो घाह खोतन वाला बंदा, मैं तो अनपढ़ जिहा बंदा है, महाराज किसी पढ़े लिखे की सेवा लाओ। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, नहीं बाबा बुढ़ा साहब ये ठीक है, तुसीं घाह खोतन वाले हो, तुसीं कहोगे मेरे हाथ इन्ने सोहने सुंदर नहीं। बाबा बुढ़ा साहब अज घाह खोतन वाले नूं गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा इसलिए देनी है, इस ग्रंथ विच बाणी भी उन्हां दी है जिहड़े जोड़े गंढदे रहे ने। इहदे विच बाणी भी उन्हां दी है जिहड़े ना हत्थां नाल कपड़ा बुनदे रहे ने। इहदे विच बाणी भी उन्हां दी है जिहड़े इन्हां हत्थां नाल कपड़ा सिउंदे रहे ने। सोने की सुई रुपए का धागा, नामे का चित हर सों लागा। इसलिए बाणी दी संभाल भी उन्होंने देनी है जिहड़ा 10 नोहां दी किरत करदा है, घाह खोतदा है। बाबा बुढ़ा साहब नूं सेवा बख्शी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा प्रकाश हुंदा है। वो तुसीं अगले विद्वानां तो कथा सुननी है, मैं एक उल्लेख होर करांगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी उत्ते सदियां लंघ गईयां ने, सदियां लंघ जाणगियां।
कोई बंदा अखरां दा नुक्स नहीं कढ़ सकेगा कि आह गलत है। अनेकां ग्रंथ दुनिया दे अंदर वक्त बदलदा है, समा बदलदा है, युग बदल जांदे ने, थ्योरियां बदल जांदियां ने ते साध संगत उदों गलत सिद्ध होण लग पैंदी। तुहाडे ज्ञात वास्ते वैसे तुहानूं पता है ईसाइयां दी बाइबल है ना जिहड़ी क्रिश्चियनां दी, वो भी साध संगत उन्होंने सोध करनी पै गई। जिहड़ा उहदे विच लिखिया सी नहीं सूरज घुमदा धरती घुमदी नहीं, हुण तां फस्ट क्लास दे बच्चे नूं भी इस गल दा इल्म है। 6-7 साल दा बच्चा भी कहंदा धरती घुमदी है, सब नूं पता है। उन्होंने बाइबल रद्द करनी पै गई। उन्हें 2 बना लिया बाइबल, एक छड्ड के दूजा उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट लिख के वो बाइबल अलग कर ली। जिहड़ी जिहड़ी गलती हुई उन्होंने अलग कर दिता, दूजी अलग बना दी। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, 5 सदियां गुजर गई ने। साध संगत इस बाणी विच कोई नुक्स नहीं कढ़ सकेगा। क्यों? ये बाणी शरीर की नहीं, ये बाणी निरंकार की है। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जीवन अवर ना कोय। जिहड़ियां अज डॉक्टरां नूं लभ रहीआं ना कि धागे वर्गियां वरीक 72 नसां ने जिहड़ियां पैर तो लैके सिर तक बंदे दे अंदर काम करदियां ने, ये गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च पहले लिखी। धरती किवें बनी है अज विग्यानी लभदे ने, तुसीं पढ़े लिखे हो, विचों पहले लभ के वेख लिओ। इहदे विच सब कुछ पहलां लिखिआ है, सब कुछ पहलां 5 सदियां पहलां गुरु ने लिख दिता है कि सच्चे ते पवना पया पवने ते जल होए, जल ते तिर पवन साजिया घट घट जोत समोए। हाँ, जिथे जिथे कंट्रोवर्सी गुरु नूं लगी उत्थे पातशाह ने लोकां दा शंका नाल दी नाल दूर कीता है। कुछ पंक्तियां मैं कहांगा जिन्हां उत्ते शंका हो सकता सी। जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आई उहनूं सतगुरु नाल दी नाल भगतां दी बाणी नूं लोकां विच भुलेखा ना पै जाए, दुरुस्त करदे रहे, क्योंकि किसी अवस्था विच कुछ भी उचारण हो सकता है। जे बाबा फरीद साहब ने उच्चारण किया ना कि आ जिहड़ा संसार अंदर भाई बेड़ा है, इस बेड़े चों लंघना, इहदे विच बहना बहुत औखा है, संसार तो तरना औखा है। बेड़ा बंध न सकियो बंधन की बेला। आखो सतनाम श्री। नींद ना आ जाए, तुहानूं थक ना जाए, फिर आखो सतनाम श्री। बाबे फरीद ने कहा बेड़ा बंध ना सके ओ बंधन की बेला। गुरु नानक साहब महाराज ने कहा नहीं हो सकता है भाई, जप तप का बंद बेलड़ा जित लंघे वाहिला। ऐदा बेड़ा बन्निया जा सकता है? बाबे फरीद ने श्लोक कहा कि फरीदा पाड़ बटोला तज करी कमलड़ी पहरे ओ, जिनी वेसी 100 मिले से वेस करे। किते कोई संप्रता ना चल जाए इस गल उत्ते। सतगुरु सुचेत रहे, भाई कोई कपड़े पाड़ के ना संप्रता अपनी बना ले। पाड़ियो कपड़े पुराने पहनो, पुराना जिहा कंबल पा के रखो, रब मिलदा है। संप्रता ना चल जाए। साहब ने कहा कपड़े पहरावे नाल परमात्मा नहीं मिलता, नाल ही श्लोक लिख दिता फरीदा काए पटोला पाड़ती। पढ़ो जिन्होंने बाणी याद है। काए पटोला पाड़ती कंबलनी पहरे, नानक घर ही बैठे शौ मिले जे नीयत रास करे। तेनों कपड़िया का कोई इतना मतलब नहीं, जिदा ने मर्जी पेंट कमीज पा के भी कोई संत हो सकता है, गृहस्थी भी संत हो सकता है। पहरावे नाल कोई संबंध नहीं है कि फलाना पहरावा ही संत। हाँ ठीक है, वह साधु गेरू रंगे वस्त्र पहनते सन, उसका कोई रीजन है कि वह लंबा समा धोना नहीं पैंदा, मैल खोरा रहिंदा। उंज साध संगत पहरावे नाल परमात्मा का कोई संबंध नहीं। एक बाबा फरीद साहब का श्लोक आया, फरीदा ये तन सबो रत है, रत बिन तन ना कोई, जो शरत अपने तिन तन रत ना हो। इत्ते कंट्रोवर्सी हो सकती सी कि शरीर लहू तो बगैर तो हो ही नहीं सकता। बाबा फरीद कहना जिहड़ा रब नाल मिल जांदा उहदे शरीर च खून ही नहीं हुंदा, खून तो बगैर तो शरीर ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकेगा। साहब ने नाल ही लोगों का शंका दूर कर दिता। सतगुरां नाल ही श्लोक लिख दिता, कहंदे फरीदा ये तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए,
जो शह रते अपने तिन तन लोभ रत ना होए। उन्हां दे अंदर लोभ दा रत नहीं हुंदा जेड़े भगती विच रते जांदे ने। भगतां की चाल नराली चलना नराली, भगतां केरी विखम मार्ग चलना लभ। लोभ अहंकारता तृष्णा बहुत नहीं बोलना। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे अंदर एक भी सवाल नहीं छड्डिया जिते कोई कंट्रोवर्सी करे, जिहदे उत्ते कोई सवाल खड़ा कर सकता। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी रब है। मैं अपने इस कथा नूं इत्थे विश्राम दवांगा। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सुनदी भी है, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते भी ने, गुरु ग्रंथ साहिब गल्लां भी करते ने। शर्त है किसी नूं करनी आ जाए। गुरु ग्रंथ साहिब बोलते भी ने, गुरु ग्रंथ साहिब सुनते भी ने। गुरु ग्रंथ साहिब साध संगत माफ करियो, कला बाहरी तौर ते कागजां अखरां दा ग्रंथ नहीं। इनू गुरु ने प्रगट गुरां दी देह भादी दिती है। पर नाल इह कहा बाणी गुरु गुरु है बाणी। फिर क्या विच बाणी अमृत सारे। अगली गल गुर बाणी कहे सेवक जन माने। ते फिर की होएगा? प्रतख गुरु निस्तारा हो जाएगा प्रतख। पर शर्त है सिख गुरु बाणी दी मनन लग जाए। जो गुरु कहे उन्होंने मन के तुर पै। जदों मनन लग जाओगे, गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा है, तुहाडे विचों बोलण लग जाएगा। मैं एक दिन कथा कही एक जगह ते, एक ओंकार सतनाम करता पुरख इत्थों शुरू हुंदा है ना गुरु ग्रंथ साहिब। ਇਹਦਾ नाम रखा गुरमत के अंदर गुर प्रसाद तक। इनू की कहंदे हो? मूल मंत्र। इनू की कहा? मूल मंत्र। मूल का अर्थ हुंदा मुढ़, मूल का अर्थ हुंदा शुरुआत, मूल का अर्थ है जड़, मूल का अर्थ है शुरुआत। जिथों मुढ़ वजे है जड़। जड़ ना होवे तो दरख्त नहीं हो सकता। पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, उपर होवे छाओ। साध संगत जे कोई मूल गवा ले उहदे पल्ले कुछ भी नहीं रहिंदा। एक बंदे ने शिकायत की राजे कोल, ये बंदे ने जी मेरे को ब्याजू पैसे लए ने, मोड़दा नहीं। 10,000 लिया सी, लाख रुपया बन गया, ना ब्याज दिंदा ना मूल दिंदा। राजे ने सद लिया, उन्हें कहा भाई तू इतों पैसे लए ने? कहने लगा जी लए ने। 10,000 ब्याजू लिया सी? हाँ जी लिया सी। 90,000 ब्याज बन गया? कहने लगा जी बन गया। पैसे दिंदा नहीं तू? जी मेरा कम नहीं चलता, गरीब हाँ। जिस कम ने लए सी वो कम चलिया नहीं। पैसे मोड़ांगा, हथी बन्ने मोड़ांगा, थोड़े थोड़े करके मोड़ दांगा। ये ज्यादा मंगदा है, दिते नहीं जाते। बादशाह सलामत मैनू किस्त बना दे। जज भी इस तरह करदा है। और राजे ने सोचा न्याय तो यह है बई हुण बंदा मन गया है, पैसे जिन्ने तू कहे ने 10,000 उन्हें मन गया, 90,000 ब्याज वो भी मन गया। यदा मतलब बंदा झूठा नहीं है, सारियां गल्लां मन गया। हुण मैं तुहाडीआं किस्तां बना देणियां ने, थोड़े थोड़े करके मोड़ देगा। पर राजा बोलिया शाहूकार नूं, कहंदा कुछ रहत तां कर, थोड़े छड्ड दे उहनूं विचारे नूं। इन्ने पैसे ना उहदे सिर पा, थोड़े जिहे छड्ड दे उहनूं। ते शाहूकार कहना जी मसां ते 2 साल ही मन्ने पैसे देण नूं, हुण मैं की छड्डा? राजा कहना कुछ भी छड्ड दे, मूल छड्ड दे, ब्याज छड्ड दे, कुछ तां छड्ड। 90,000 चों कुछ ना कुछ ते छड्ड। वो बंदे दी जुबान तो शाहूकार तो निकलिया, कहंदा 90,000 ब्याज छड्डना ते औखा है, 10,000 मूल माफ कीता। 10,000 मूल माफ करता, 90,000 दवा दो। राजे ने कहा एक पैसा नहीं जे मिलना, सब खर्च कर दो। क्यों? वो जेड़े बंदे ने मूल गवा लिया ब्याज काहदा मंगदा है? मूल करके तो ब्याज है, तू मूल माफ कर दिता है, हुण ब्याज काहदा मंगदा है? पुत्र धीआं संसार पैसा सब कुछ तुहानूं ब्याज विच मिलिया। मूल अकाल पुरख दा नाम है, जेड़ा मूल नालों टुट गया ओहदा ब्याज भी किसी काम दा नहीं। ये याद रखियो, मूल नाल जुड़ना है। उठदिआं सार सिख पहलां पढ़े एक ओंकार सतनाम, आखो एक ओंकार।
फिर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुहाडे चों बोलण लग जाएगी। जिथे जाओगे गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे नाल। गुर सिख दा अर्थ है सिख तो अगे गुरु रहन लग जाएगा। हर कारज विच गुरु बोलेगा। आपां गलत कदम चुकांगे, गलत चुकदे गुरु बोलेगा गलत है। तुसीं गलत खाना खाण जाओगे, गुरु बोलेगा तू गलत खा रहे। पर सानू गुरु वो चाहिए ਜਿਹੜਾ बोले ना कुछ भी गुंगा होवे। जो असी करिए करी जाइए, जो असी खाइए खाई जाइए, सानू रोके ना। बस ऐतवार नूं सतसंग विच सद के ऐ लगे वे असी सतसंगी उदण चिट्टे कपड़े पाए होण लगे वे असी कुछ कर आंदा। 6 दिन जो मर्जी करो, इस गुरु ने तुहाडे नाल कोई रहत नहीं करनी, ना तुहाडे नाल ना मेरे नाल। गुरु ग्रंथ साहब जी दा किसे नाल कोई लिहाज नहीं। एक बेनती ध्यान नाल सुनियो साध संगत, इस गुरु ने हर थां ते बोलना है। जदों गलत चीज खाओगे ने बोल पैना। घर विच गलत चीज रखोगे इत्थों आवाज आ जाए, नाल ही आवाज आएगी बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाते तन पीड़ी है मन में। इधर बंदा अखंड पाठ साहब भी बुक कराउंदा है, पाठी भी करदा है, कीर्तनीय भी करदा है, रमाला भी लियाउंदा है, होर समान लियाउंदा है। ते माफ करियो, सब तो पहला पता की करदा है? जिहड़ा गुरु तो बेमुख बंदा है ना, उसनूं सिख ना समझियो। वो गुरु तो बेमुख है, उन्हें सिर्फ पाठ कराउण दा लोक सद्दण दा प्रबंध कीता है। वो बेमुख बंदा एक काम करदा है, कहंदा पैलस विच शराब भी चलाउणी, लाइसेंस पहला ले लईए, लाइसेंस लैके चलाउंदा है। पेटियां पहला बुक कराउंदा है, पाठ बाद विच बुक कराउंदा है। साहब ने लिख के दिता है, आह चीजां जिदण घर च लियाउने तेरा जप तप पूजा पाठ सब कुछ लीक बज जाती है। गुस्सा ना करियो, ये मैं तुहाडे भले लिए कह रहा। जे तुहाडे घर च चीज पई है, कीता जप तप संयम पूजा पाठ नेम नाल दी नाल खत्म हो जाना। इस तरह होना जिवें अन्ना बंदा रस्सी वटदा पिछे बच्चा खा रहा, जाओ टो के वेखदा पिछे रहा ही नहीं कख नहीं। जैसे अंदरों अचिंत चिंत जेवरी बटत, खात जात बशरे टटोरे पछतानो है। अन्ने बंदे दी रस्सी बच्चा खा जांदा, वो बेचारे दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। इस तरह तेरा हाल होना है। साहब ने लिख के दिता है, कबीर भांग माछली सुरापान। अर्थ तां सीधा ही आ, मैनूं ते नहीं करन दी लोड़। एक सज्जन इटली तो मैनूं फोन करदा, कहंदा भाई साहब जी मच्छी तां नॉन वैज च नहीं आउंदी। मैं कहा पता नहीं तुहाडे इटली च ना आउंदी होएगी, भाई तू अपने हिसाब नाल अर्थ करने करी जा। हर बंदा अपने हिसाब नाल अर्थ करदा है। एक बंदा मैनूं कहंदा शराब पीनी किहड़ा माड़ी है भाई साहब जी, जे थोड़ी चलो तो दारू है। हद हो गई गल वाली। हजूर ने सीधा लिख के दिता है तुहानूं, मेरे कोलों अर्थ सुन दी लोड़ नहीं। साहब कहंदे कबीर भांग माछली पढ़ो सुरापान, मीनंग शराब। जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल। फिर तो हो गया गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश तेरे घर में, जे तू आ चीजां छड्ड दित्तियां। जे नहीं तो हिरदे घर में कोई प्रकाश नहीं होया। लाई जा लंगर। एक बिजली महकमे का एक्शन मेरा मित्र रहा, हुण एससी बन गया, एससी उपर दा ओहदा है। वो कहता भाई साहब जी असीं 3-4 एक्शन अफसर इकट्ठे बहिंदे खांदे पींदे, साडे विचों एक बंदा धार्मिक वो कहंदा जी मैं फलाने डेरे जाना। वाह जी वाह, उत्थे ते रब ही है, जाना चाहिए। कहना चलो कई बार खाण पीण वाले भी प्रोग्राम बना लेंदे ना, नाले पिकनिक हो जाएगी नाले वेख आवांगे की है। वो चले गए। जदों उस डेरे विच गए, वो कहंदा सानू नाल दे एक्शन ने ना ग्रीन कलर दे टोकन लेके दित्ते। बड़ा खुश हो। ये टोकन कादे वास्ते? कहना सर आपां वखरे दरवाजे तो जाना, जिधरों संगत जांदी उधरों नहीं, ये अफसरां वास्ते है। वखरे टोकन जिन्हीं 10-10 20-20 रुपए चढ़ाने ने, वो आम रस्ते जिहड़े ऑफिसर बंदे ने उन्हां दा खास रस्ता। तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकण आए हो, इत्थे किसे अफसर छोटे वड्डे दा कोई फर्क नहीं। जिन्हें 1 पैसा भी चढ़ाया वह भी मोहरे बह सकता है, जिन्हें खाली हथ मत्था टेकिया वह भी गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबे बह सकता है। इत्थे कोई VIP नहीं।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਟੋਕਨ ਮੋਹਰੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਮੋਹਰੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ माइक लेके, अरे बाबा जी पधार रहे हैं, गुरु पिताजी आ रहे हैं, सब खड़े हो जाए। कहना सब खड़े हो गए। कहना मैनू लगा इधरों आउणगे, सज्जियों खब्बियों किसी पास्यों बाबा जी, पर वो ते ना सज्जियों ना खब्बियों ना अग्गियों ना पिछियों। बाबा पता किधरों आया? कहना सर्च लाइटां जगा दित्तियां स्टेज उत्ते। बाबा तो उपरों क्रेन नाल सिस्टम बनाया सी, जिवें ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਮਕਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ, ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਚਮਕਦੇ, ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, 2-4 ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮਕਣਾ? ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, अरे भाई जितने भी श्रद्धालु जन आए हैं, शत शत सबको कोटि कोटि प्रणाम, बैठ जाओ। फिर कहना बाबा बोलिया, आप में से जो जो बीड़ी बत्ता लेते हैं, तंबाकू सिगरेट और सुरापान करते हैं, वो खड़े हो जाए। ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ 5-6, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਖਿੱਚੇ ਵੇ, ਨਾ ਖੜੋ ਨਾ ਖੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਗਏ 5-6। फिर कहना मैं पिछा परत के वेख्या, कल्ले ते नहीं खड़े, कोई होर भी खड़ा है। कहना 20-22 हज़ार दे इकट्ठ चों बैठे बंदे तां दिसदे नहीं सी, खड़े दिसदे सी। इन्ने भारे इकट्ठ चों 15-18 हज़ार बंदा शायद खड़ा होना है। कहना असीं भी हौसले नाल खड़े रहे, छडाउणगे, कोई सेवा लाउणगे, सजा लाउणगे, ही हो सकदा है। पर कहना इन्ने बंदियां दा खड़ा वेख के ना बाबियां वे ते खड़े ने, खलोते ने, बैठे ते थोड़े ने, डेरा थोड़ी खाली कराउणा है। इन्ने बंदियां नूं शराब तंबाकू बीड़ी सिगरट छड्डण लई कह के अगले एतवार कौन आएगा? साध संगत वो कहंदा 15-18 हज़ार बंदा खलोता सी। इन्ने बंदे खलोते वेख के बाबे ने ये नहीं कहा वे सजा लाउणी है, शराब छड्डो, तंबाकू बीड़ी बत्ता छड्ड दिओ। कहंदा अगों फिर बाबा पता की बोलिया, अरे भाई कोई बात नहीं, बैठ जाओ, धीरे धीरे छोड़ देना। धीरे धीरे कौन छड्डदा है? कहंदा 10 साल मैं जांदा रहा, असीं नहीं छड्डी। 10 साल जांदा रहा, नहीं छड्डी। धीरे धीरे कौन छड्डदा? जिस गुरु ग्रंथ साहिब कोल तुसीं बैठे हो, इत्थे बिल्कुल नहीं कहा जाना कि धीरे धीरे छोड़ दे। इत्थे यकलक तुक दम करारी जो करे, हाजिर हजूर खुदाए। इत्थे अज ही फैसला लेना पैना है, ये कल ते नहीं। जे कल ते छड्डोगे, कबीर काल करंता अब है कर, अब करता सोए ताल, पाछे कशु न होएगो, सर पर आवे काल। जे धीरे धीरे कहोगे नहीं छड्ड। सो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु बोलदा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी सुनते ने, सानू बुलाना आना चाहिए। एक बच्ची BCom MCom उन्हें कीती हुई सी, BEd कीती हुई सी, बड़ी पढ़ी लिखी। उन्हें 5 दिन दे दीवान सुन लैन, उहदा मन बन गया अमृत छकण। तुसीं थक ते नहीं गए? वैसे कल भी कथा होगी, साध संगत ओहदा मन बन गया अमृत छकण दा। उन्हें 5 दिन के दीवान सुन के अपनी मां नूं घर जाके कहा मैं भी अमृत छकना है। ओहदी मां ने कहा बह जा आराम नाल, तू नहीं अमृत छकना, इन्नी पढ़ी लिखी है, अमृत छक लिया, तेरे लिए वर कित्थों लभांगे? नहीं छकना। उन्हें कहा मां तुसीं भी छकिया? वो कहनी साडी गल होर, अपने घर विआह तो बाद छक लई। बच्ची का मन बनया सी, उन्हें अगले दिन किसी इशनान किया, ककार ले, गुरु घर में अमृत संचार सी, जिथे दीवान सी, उन्हें छक लिया अमृत। छक के घर चली गई। शामां नूं 4 बजे घर पहुंच के उपर ची कृपान श्री सब पाई ते जाके घर वालियां नूं, मां नूं, भरा भरजाई प्यो नूं गज के फतेह बुला के कहंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओदी मां बड़ी गुस्से हुई, तैनूं किहने कहा सी अमृत छकण नूं? बड़ी जिद्दी है, तू क्यों छक के आ गई?
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ तेरे सवालों का जवाब अज अमृत छकण वेले मिल गया है। तू कहंदी सै ना तेरे वास्ते घर बार कित्थों लभांगे, जे तू अमृत छक ले तेरे लिए वर कित्थों अमृतधारी लभांगे, घर कित्थों लभांगे। मां जदों अज अमृत पान कराया पंजां प्यारियां ने अमृत छका के कहा अज तो बाद तुहाडी जात कुल गोत वर्ण सब खत्म, तुसीं खालसे होए। अज तो बाद तुहाडी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब, अज तो बाद तुहाडी माता माता साहिब कौर जी, अज तो बाद तुहाडा पिता पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते ओ बच्ची बोली मां अज तो बाद मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह हो गया ते तुहानू मेरा वर घर लभण दी चिंता करन दी लोड़ नहीं, मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह आपे लभ लेगा। इन्ना विश्वास होना चाहिए। खैर महाराज की नजर हुई थी, वो बच्ची नूं सरकारी जॉब मिली टीचर दी। उस बच्ची का फिर 6 महीनों बाद रिश्तेदारी चों मैथ पढ़ाउंदा टीचर एक अमृतधारी नौजवान नितनेमी सोहना सुनखा उस बच्चे नाल रिश्ता आनंद कारज हो गया। गुरु ने सब कुछ दे दिया, 2 पुत्र भी बख्श दिते, हुण किसी चीज की कमी ना गई। 7 साल पढ़ाउंदियां हो गया, सौहरे घर वसदियां हो गया, अमृतधारी रोज उठ के नितनेम करना, गुरुद्वारे जाण, जीवन बड़ा नितनेमी। गुरु ने सब बख्शिशां कीतियां। 7 सालां बाद एक दिन गुरु ने परखिया किते खड़े भी ने कि एवें ही खालसे ने। कदे कदे गुरु परखदा भाई, गुरु दा आसरा लैके चले हो। ਉਹਦੇ घर वाले ਨੂੰ बीमारी लग गई, खंघ रेशा वधद्या वधद्या फेफड़े जाम हो गए, ਉਹਨੂੰ दमे की शिकायत हो गई, टीवी का रोग लग गया, इलाज कराते रहे, दमा वधदा गया, जिथों दवाई लई 2-4 दिन कम करनी, फिर वो दवाई ने कम ना करना, परेशान रहन लग पे। जिहड़ा रिश्तेदार आया उन्हें को गल कही, किसी नूं पुछ दस लो, किसी बाबे कोलों पुछ लो, किसी ने कुछ खिलाता होना, किसी ने कुछ करता होना, आ तुहानूं लोग कहणगे पर तुरिओ ना, यह भी एक माया है। उन्हां किसी दी ना मन्नी। एक दिन पेके आ गई, ओदी मां ने कहा तू तो बड़ी जिदी है, मनदी ते नहीं, पर जे कहना मन लेना जरूर तेरे घर वाले नूं किसी ने कुछ खिलाया कुछ कीता जिहड़ा इदां ओनू दवाई नहीं लगदी। मेरे नाल चल, आ 90 वाले रोड ते पीर बाबे दी समाध ते एक मौलवी रहिंदा है, धागा तवीत पानी दिंदा है, बड़े लोग हटदे ने ठीक हुंदे ने। वो बच्ची ने कहा मां मैनू किधर तोरन लगी, मैं अमृत छकिया। ओदी मां ने कहा जाके तां वेख बड़े अमृतधारी आउंदे ने। उन्हें कहा आउंदे होणगे जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास नहीं, आउंदे होणगे जिन्हां नूं ये पता नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब समर्थ गुरु है, जिन्हां नूं ये पता नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब सुनदा है। साध संगत वो मां ओदी गुस्से च बोली किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब, 6 महीने हो गए तेरा घर वाला तो ठीक ना होया, फिर मीणा मारिया। 6 महीने हो गए घर वाला तो ठीक ना होया, किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब। वो बच्ची ने कहा मैं किसी बाबे तो नहीं पूछना, मैनू मेरे गुरु ने दस दिता है सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। जदों मां ने मीणा मारिया ना, बच्ची ने अखां भर लईआं, कहंदी मां मैनू जो मर्जी कह ले, गुरु के विरुद्ध ना बोल। रहना सी 2-4 दिन नहीं रही, सवेरे दिन चढ़िया, बच्चों नूं तैयार किया, वापस मुड़ गई। जदों वापस गुरदासपुर पहुंची ना, भरमा मीह पिया, बारिश हो रही सी, वो बस विच बैठे मां दियां गल्लां उहनूं अखां भर रहीआं सन। किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जिन्नूं 6 महीने हो गए तेरा घर वाला ना ठीक होया, मीणा मारिया, मन दुखी होया, पहुंच गई घर। जदों घर गई ते घर दे बूहे खुले ने, घर मास्टर जी नहीं, बेड़ा साफ सफाई हुई है, कमरे साफ ने, एक कमरा बिल्कुल साफ किया होया, कुर्सियां मेज चुके हुए ने। एक ही गल किधर चले गए, माइयां तो बगैर घर घर नहीं रहिंदे, भावें एक दिन पेके चलियां जान, फिर भी चीज़ां टकाने ते रखणियां सामभणियां बीबियां दा काम है। उन्हें सफाई शुरू कर दी, इन्ने नूं घड़ियाल बजण दी आवाज आई, मन च लगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आ रहे ने। जदों उठ के खलो के सिर कज के हथ हो के खलोती, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप सिद्धे उन्हां दे घर 5 सिख लिया रहे ने। मास्टर जी नाल है, अखां भर आईआं, मेरा सतगुरु मेरे घर आ गया है।
ते मन च कहती है मां वेख तां सही मेरा गुरु किन्नी नेड़े होके सुनदा है, मेरा सतगुरु मेरे घर आ गया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा प्रकाश किया, 5 सिखां ने चंदवा लाया ते घर वाले ने कहा जिथे गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश सी ना वो कमरा चोण लग पिया, मीह 2-4 दिन बरसात रह सकती है। ये सिख आए सी कहंदे तुहाडे घर प्रकाश कर दईए, अपने घर कमरा वाधू है, आपां महाराज दा प्रकाश कर ले आंदा। दोवां जियां ने मत्था टेकिया, बच्चे नूं उठा के सामने बह गए, मत्था टेक के प्रकाश करके तब्या बह के सिख ने हुक्मनामा लिया। मर्यादा है ना जो प्रकाश हुंदा हुक्मनामा लईदा। गुरु ग्रंथ साहब बोले जी, फिर गुरु ग्रंथ साहब फिर बोल पए। जदों प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी तो आवाज आई, सामने बैठी वो बच्ची रो रही सी, मां दीयां गल्लां चेते आ रही सन। केड़ा गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों 6 महीने हो गए, तेरा घर वाला तो ठीक ना होया। गुरु ग्रंथ साहब चो फिर आवाज आई, ताब्या बैठे सिख ने हुक्म पढ़िया, ऐ लगा जिवें सीधा ही गुरु ने कहता धीए जा मेरे ते मान करके बैठी है, जा धीए अज तो बाद तेरे घरों दुखां दा डेरा ही चुकिया गया। सीधा गुरु ग्रंथ साहब जी ने बोल के गया, सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रो का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। ओ दिन हद परत के एक टैबलेट गोली भी कितों लैनी नहीं पई, पता नहीं दमा किधर चला गया, टीवी किधर चली गई, फेफड़े किवें साफ हो गए, बिल्कुल तंदुरुस्त नमान। साध संगत गुरु सुनदा है, गुरु बोलदा है, बस भावना की लोड़ है, भय और भावना अंदर पैदा हो जाए, फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज सदा ही नाल रहिंदे ने। आओ अरदास करिए, महाराज साडे अंदर भय और भावना पैदा करियो, जो कम भावे सोई करायो साडे कोलों, ऐसा काम ना करायो जिहदे करके गुरु तो दूर हो जाइए। एक बार गुरु की शान विच गज के पढ़ दो, जिन्होंने प्यार है सारे मिल के कहो, ऐसे गुर को वल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को वल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को वल बल आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को वल बल आप मुकत, ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर का। डेढ़ घंटा गुरु ने मेरे को सेवा लई है, हुण 3 मिनट तुहाडी सेवा। गज के कहो, ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर का वल बल जाइए, ऐसे गुर को। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर को वल बल जाइए, ऐसे गुर को। ऐसे गुर को वल बल जाइए,
आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का, आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर का, आप मुकत मोह तारे। सतगुरु किरपा करन तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। मैं तुहाडे चरण परसन विच कई साल लेट हो गए, क्योंकि सत्कारयोग वीर उज्जवल सिंह जी कई बार अगे पिछे हुक्म करते रहे, पर कुदरती समागम पहला बुक होंदे ने, इसलिए दर्शन नहीं हो सके। सो मैनू लगता मैं थोड़ा थोड़ा टाइम वध ला के 2-3 साल तक कवर कर ही दिते ने। तुसीं 1 घंटे दे आदी हो, तुहाडी स्टेज पक्की है, पर तुसीं असीस बख्शी है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सेवा लई है। एक चीज़ तुहाडे कोलों मंग के लैनी है, दोवें हथ जोड़ के, वो जरूर किरपा करियो, असीस बख्शियो। जो सतगुरु रसना तो खवाउंदे ने असीं अपने जीवन विच भी कमा सकीए, तां जो आप संगत दी चरण धूड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल हो सके। असीं कल्ले कहण जोगे ना रह जाइए, ट्रैफिक वाले वांग उत्थे ना खड़े रह जाइए। लोग अमृतसर भी पहुंच जाते हो, बेचारा उत्थे खड़ा रहिंदा, लंघ जाओ लंघ जाओ। साध संगत सानू भी अपनी चरण धूड़ दे के गुरु नानक साहिब दे घर तक लै जाओ। ये तुहाडे चरनां चों असीस मंगणी है। कोटान कोट शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा, समूह प्रबंधकां दा धन्नवाद। असीस दिओ, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।